रे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। मुनियों ने समझी है, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना। थैंक्स टू ऑल। Thank you, Virang. I welcome all the participants on the online on this third online program, and we are very happy, lucky that today AB is with us. Uh, every program of his, there is a great learning. So AB sir, thank you very much. And we look forward to, there are more than 70 people. I do not want to take much of your time. I will just say that Chinmay very briefly introduce so that some of the new participants, if at all they are there, they get an idea of AB. Thank you. Yes. So welcome everyone again. I briefly introduced our today's faculty. He's a cycling enthusiast and a self-development coach in true sense, dedicated himself to impact the lives of many. He speaks with passion and his words are surely impactful to bring self-transformation. He always takes out special time to take sessions at Yuvalai, even though he has very tight schedule working in one of the largest conglomerate in India. It is better to call him AB if you want to stay away from giving him a fine. And so let us finally ask AB to guide us on this journey of making the best version of ourselves. Over to you, AB. So thank you, Chennai. Thank you for those kind words. And I don't deserve any of those kind words. It is just God's grace and His mercy is sufficient for me. So whatever I am and whatever I'll ever be in my life is because of three reasons. Number one, the unceasing prayers of my parents. The prayers of my parents are the wind behind my back, which helps me propel and helps me move forward. I can't do anything without the power of the prayer, the support that I get from my wife. Her name is Smruti, and without her support, would not be able to do anything. And last but definitely not the least, the ineffable smile on the face of our daughter. Her name is Natasha. She's a pride, she's a joy. I'm blessed to be a part of an awesome family, right? So whatever I am, I give all the credit to God, and these three are the tenets on which my life stands, and it will always be like that. So thank you for this opportunity. Thank you for all joining in. There are, as I can see, more than 80 people on the call on a Sunday evening. You had other options to exercise, but you chose to be on this call. So that definitely tells me that you are one of the very few people who are interested in moving forward. You are in that 1% population that has the discipline to make ourselves better than what we were yesterday. So two words that I try to live my life with. I do it sometimes I fail, is how do I become better than what I was yesterday, right? So beat yesterday are two words that definitely is there in my vocabulary, and become better with each passing day, right? And so once again, I welcome all of you on the call, right? So I don't deserve any of those kind words. It is God's grace and His mercy and the support system that I have, as I said, the praise of my parents, the support that I get from my wife, and the amazing love that we get from our daughter, right? So today we are here, and this is one of the first times I'm doing sessions online. So if I goof up, if I mess up, please forgive me. I'm not used to speaking into a phone. I'm more of a people's person, right? So uh, this is a new experience for me, and I'm learning, right? So request you to bear with me in case I don't stand up to your expectations, right? So thank you for that.
And again, I don't know how to do a polling and how to do activities online, but if you are with me, I would want you to think about the question that I want to ask is, are we the best versions of ourselves? Are we doing all that we are capable of doing, or are we falling short? If you were to look back into yesterday, would you say that, yes, I could have done better? If I were to look back into yesterday and if I had a feeling and emotion that, yes, I could have done better, that's a feeling of regret. And that's not being the best version of ourselves, right? And I was also thinking about a question that we are passing through difficult times, and this is unprecedented times in the history of mankind. I don't think so, whatever little knowledge that I have in the history of human mankind, an instance such as this has ever occurred where the entire world, almost the entire world, is under a lockdown. Economies are closed down, borders are closed down, nothing is happening, right? And we will pass through this. I have no doubt that we will pass through this. This too shall pass is a belief statement that I have. The question is, and I hope and pray that all of us will live long to tell the next generation about this unprecedented historic event that happened in our lives. We would have survived the COVID-19, right? So the question is, let's fast forward 20 years into our lives. Let's fast forward 25 years into our life. Let's fast forward 35 years into our lives, right? Sometime in the future, if someone were to ask you, then what did you do in that 21-day lockdown period? What did you do? If someone were to ask me, and remember, we are fast forwarding ourselves and we are in a different time zone. We are, let's say, in 2030. Let's say we are in 2040. Let's say we are in 2045, right? So if was someone were to ask us this question, that you saw that pandemic, what did you do when there was a lockdown? Would you say I just watched Netflix the whole day? What would you say, right? So those are some thoughts I would want you to take seriously and think about it. Write down on your own story. What are you learning? What are we doing in these times? And remember, these times will never come back again, right? So how do I be the best version of myself? This is one of my favorite sentences. I quote this pretty often. Even in my written communication, I write this pretty often, that let's be the best versions of ourselves, right? And I thought of some points. These are 10 points that I would want to cover. These are not just the 10 points. There could be many more. These are just some of the things that came to my mind. Feel free to add more as you go on. So number one point, not in a particular order. AB, No, let's see. sorry to intervene. Someone is asking if you can also add Hindi through English Okay. and Hindi Okay. mix. Yes. Okay, I'll do that. I'll do that. Right. So I'll be bilingual as much as possible. And if my voice breaks and if I'm not able to reach out to you, please stop me. And as I said, this is pretty much the first few times that I'm doing this. I have no idea whether I'm reaching out to you or not, whether my voice is there or not. Right. So in case my voice breaks, please let me know. Right. So few points. Let's have the figure 10. एंड जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ 10 पॉइंट नहीं है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, राइट? अगर आपको लगता है कि और पॉइंट्स हैं तो आप इस पे डेफिनेटली ऐड करिए, ताकि हम जितना कर सकते हैं वो हम करें. ईश्वर ने हमें जो तालंत दी है, ईश्वर ने जो हमें काबिलियत दी है, उस काबिलियत पर हम खरे उतरे. जो हम कर सकते हैं वो हम सब कुछ करें. हम एक कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ ना जिए. हमारे लाइफ में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पीछे मुड़ के देखें और सोचे कि काश मैंने थोड़ा सा और दम लगाया होता, काश मैंने थोड़ा सा और एफर्ट लगाया होता, काश मैंने थोड़ा सा और किया होता, राइट? वो काश वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए, राइट? हम जो कर सकते हैं वो हमें हर दिन करना चाहिए, राइट? तो आपका बेस्ट वर्जन आप और मैं कैसे बन सकते हैं, उस सिलसिले में आपसे मैं कुछ बातें करने वाला हूँ. नंबर वन इज, हमें छोटी छोटी जो हमारी लाइफ में जीत होती है उसे सेलिब्रेट करना चाहिए. तो अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो पहला पॉइंट लिखिए, सेलिब्रेट स्मॉल विंस. एंड मुझे याद है कि जब हम स्कूल में क्रिकेट खेलते थे, मैं खेल कूद में ज्यादा इन्वॉल्व था, पढ़ाई लिखाई मैंने कम ही करी थी, राइट? तो जब आप क्रिकेट खेल रहे थे एंड एक अच्छा सा कवर ड्राइव आपने मारा और
मस्त एक चौका लगाया तो आप कहते थे यस। अगर आपने फुटबॉल खेला है एंड कभी गोल हो गया तो आप कहते थे यस, राइट। आपने मैच नहीं जीता, आपने सिर्फ एक चौका लगाया, आपने सिर्फ किसी का एक विकेट लिया, आपने सिर्फ एक गोल किया, और आपने अभी मैच जीतना बाकी है। बट हम क्या करते थे, हम वो छोटी सी जो जीत थी उसको हम सेलिब्रेट करते थे, राइट। सो वी सेलिब्रेटेड स्मॉल विंस। एंड जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम ये छोटी जो जीत है हम भूल जाते हैं उसको सेलिब्रेट करना, राइट। छोटी छोटी खुशियां आप अपनी लाइफ में ढूंढिए और उसको सेलिब्रेट करिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको राइट फ्रेम ऑफ माइंड में रखता है। याद रखिएगा, हमें लाइफ में युद्ध जीतना है, एंड वो युद्ध जीतने के प्रोसेस में देयर आर सम बैटल्स जो हमें हारने पड़ेंगे। We will have to pick and choose the battles that we are willing to lose, right? So my first point is celebrate small wins. एंड मुझे पता है कि हमारे पास तकरीबन 1 घंटा है, सो मैं उसको बहुत एलोबरेट नहीं कर रहा। मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर कुछ राइटअप करके आपके साथ शेयर करें एंड कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाएं उसको, राइट। सो अभी एक हाई लेवल ओवरव्यू आपको दे रहा हूं मैं, एक आपको एरोप्लेन व्यू दे रहा हूँ, अबाउट 35,000 व्यू पॉइंट दे रहा हूँ, हाई लेवल डिजाइन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फिर वो एरोप्लेन व्यू से हम लोग हेलीकॉप्टर व्यू पे आएंगे, हेलीकॉप्टर व्यू से हम लोग ग्राउंड व्यू पे भी आएंगे कि हम ये कैसे करते हैं। अभी आपके साथ म्यूट योर, यस थैंक यू। हम कैसे करेंगे ये, उसके ऊपर हम ही कभी और मिलके उसके बाद हम बात करेंगे। तो जो पहला पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किया इज वी नीड टू सेलिब्रेट स्मॉल विंस। दूसरा जो मेरे लाइफ में मुझे बहुत हेल्प करता है, आई एम श्योर अगर आप करेंगे तो आपको भी उतना ही वो फायदेमंद रहेगा, हेल्प करेगा, इज कि हम पॉजिटिव सोचें। ना केवल पॉजिटिव सोचें बट हमारे एक्शंस भी पॉजिटिव होने चाहिए। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है। सोचना यस एक शुरुआत है, बट वो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। सो हमें एक कदम और बढ़ाना पड़ेगा, हमें एक्शंस लेने पड़ेंगे, राइट। एंड जब आप इस दुनिया में बाहर जाते हैं तो लाइफ डिफिकल्ट है, राइट। एक एक अच्छे से कमरे में घर में आराम से आप हैं, ये लाइफ नहीं है, लाइफ टफ है, उसको हमें एक्सेप्ट करना है और उसके लिए हमें तैयार रहना है, राइट। एंड एक सकारात्मक व्यू से अगर हम अपनी लाइफ जिए, एक पॉजिटिव इंटेंट अगर हमारे में है तो वो चाल में दिखता है, वो आपके व्यवहार में दिखता है, वो आपके एटीट्यूड में दिखता है, राइट। एंड योर थॉट्स शुड बी फॉलोड बाय योर एक्शंस, राइट। सो थॉट्स आर थिंग्स। सो जो सोचा है उसके ऊपर मुझे काम करना पड़ेगा, राइट। सो दूसरी चीज मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि वो कि हम पॉजिटिव सोचें, ना केवल पॉजिटिव सोचें बट हमारा जो एक्शंस है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। जब आप काम कर रहे हैं, किसी किसी कार्य पे आप जुड़े हुए हैं, तो ये सोच के करिए कि मैं ये करने वाला हूँ, नहीं होगा कैसे होगा, राइट। वो दुविधा में नहीं रहना, वो डाउट में नहीं रहना। याद रखिए, फियर एंड डाउट हमें काम नहीं करने देता है। बहुत सारी बार हम कुछ करना चाहते हैं बट वो फियर हमें रोक के रखता है, वो डाउट हमें रोक के रखता है। ये सेंटेंस मैं काफी बार बोल चुका हूँ, आप में से कुछ लोग ने मुझे ये कहते हुए सुना होगा कि डाउट हैज किल्ड मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर हैज। हमें डाउट रहता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमें एक डर सा रहता है कि भैया मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। याद रखिएगा कि एवरी ग्रेट किंग जो आज है वो वंस अपॉन अ टाइम एक हेल्पलेस चाइल्ड था। आज एक ग्रेट स्ट्रक्चर आप देखते हैं, बट याद रखिए कुछ समय पहले वो सिर्फ एक ब्लूप्रिंट था। तो आप कहाँ है वो डिपेंड ज्यादा मायने नहीं रखता, बट हम कहाँ जा रहे हैं वो ज्यादा मायने रखते हैं। सो इट डज नॉट मैटर वेयर यू आर, व्हाट मैटर्स इज वेयर यू आर गोइंग, राइट। सो याद रखिए, गॉड डज नॉट डायरेक्ट अ स्टेशनरी व्हीकल। आई विल रिपीट व्हाट आई जस्ट सेड, गॉड डज नॉट डायरेक्ट अ स्टेशनरी व्हीकल। आई नीड टू मूव इन फेथ। एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे रास्ता खुलता रहता है, खुलता रहता है, खुलता रहता है। एंड कई बार डिटॉर्स आएंगे, हमें डिटॉर्स लेने पड़ेंगे, बट हमें अपने मंजिल तक जाना है। सो दूसरा पॉइंट जो मैंने आपसे कहा कि हम पॉजिटिव सोचें और हम पॉजिटिव एक्शन पे काम करें, राइट। सो वी शुड फॉलो आवर थॉट्स विद एक्शन। नंबर 3, बिलीव इन योरसेल्फ। अगर मैं आपसे कहूं कि एक पेपर एंड पेन लीजिए और 5 सेंटेंस फटाफट लिखिए स्टार्टिंग विद आई एम। हम में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं क्या लिखूं,
क्योंकि उसमें मैं आपसे कहूंगा कि आपका नाम नहीं चाहिए, आपकी कोई पर्सनल डिटेल्स नहीं चाहिए, आपका टोपोग्राफी, आपकी ज्योग्राफी, आपके डेमोग्राफिक डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, प्रोफेशनल डिटेल्स कुछ नहीं चाहिए। डू बिलीव इन योरसेल्फ? आप आपके पास जो काबिलियत है, आपके पास जो ईश्वर ने दी हुई क्षमता है, क्या उसके ऊपर आप यकीन करते हैं? तो मेरा आपसे आपसे अनुरोध है, आपसे एक चैलेंज है कि प्लीज बिलीव इन योरसेल्फ, बिकॉज इफ आई डोंट बिलीव इन माई सेल्फ, नो वन एल्स इज गोइंग टू बिलीव इन मी, right? So you need to put your best foot forward, believe in yourself, know that you can do it, and believe in yourself के का जो अगर आप एक स्टेप पीछे जाएंगे तो वो आपका प्रिपरेशन होगा। You have to prepare as if your life depends upon it. वो इंटेंसिटी होनी चाहिए वो तैयारी में, बिकॉज तैयारी के बिना कुछ नहीं होता है। We are all, everyone's about 7.5 billion people in this earth. Everyone wants to be successful. Everyone wants to win in life. But there are only a few who are willing to pay the price to be successful. Only a few minuscule percentage of people are willing to practice while others are playing. Right? So you have to believe in yourself. And वो जो practice आपने करी है, जो आपने जो तैयारी करी है, जो तालीम आपने ली है, वो तालीम आपको एक हौसला देती है कि नहीं मैं कर सकता हूँ। तो बिना तालीम के, बिना प्रैक्टिस के, बिना अनुशासन के, बिना शिष्टता के साथ अगर आप बोलेंगे कि मैं करूंगा, करेंगे, मरेंगे, वंदे मातरम, तो सिर्फ खाली खोखले शब्द है, उससे कुछ होने नहीं वाला है। तो आप निराश हो जाएंगे, जो आपने सोचा है वो होने नहीं वाला है, बिकॉज बाहर की दुनिया में कंपटीशन बहुत है, एंड कंपटीशन आपको अपने साथ करना है, किसी और के साथ मैं कॉम्पीट नहीं कर रहा, मुझे अपने साथ कॉम्पीट करना है, मुझे अपना बेस्ट वर्जन बनना है। मेरा एक सेंटेंस आप याद रखिए, अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो इसको लिखिएगा कि आई शुड बी द बेस्ट दैट आई कैन बी, नॉट द बेस्ट इन अ ग्रुप। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं इस कॉल में, तो अगर आप एक क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि मुझे क्लास में नंबर 1 बनना है, मुझे क्लास में बेस्ट बनना है। नहीं, मेरी आपसे पर्सनल लेवल पे मेरी ऐसी सोच है कि आप अपना बेस्ट बनिए, क्लास में बेस्ट नहीं बनना है। क्लास में जब बेस्ट बनने का, या एक पर्टिकुलर ग्रुप में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप अपनी टीम में बेस्ट बनना चाहते हैं, तो आप किसी के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, वो एक नेगेटिव एनर्जी देता है, वो अच्छी बात नहीं है। राइट? सो माय एडवाइस टू एवरीवन अंडर द साउंड ऑफ माय वॉइस इज आई शुड बी माय बेस्ट, not try to be the best. I hope I was able to clarify this. I'll repeat for the benefit of everyone. I should always try to be my best, not try to be the best. Right? So वो बहुत important है। अपने अपने काबिलियत पे बिलीव करिए, और हर अच्छी चीज बनने में टाइम लगता है। Rome was not built in one day. राइट? आप रातों रात मैगी नूडल्स वैसी लाइफ होती नहीं है, 2 मिनट में आपने सोचा हो जाए, ऐसा होता नहीं है। इट टेक्स अ लॉट एंड लॉट एंड लॉट एंड लॉट ऑफ टाइम। राइट? सो आपको जब दुनिया सो रही है तब आपको उठ के तैयारी करनी पड़ेगी, जब आपके फ्रेंड्स पार्टी कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। राइट? सो वो सैक्रिफाइस लाइफ में बहुत जरूरी है। आप कोई भी इंसान जिसने लाइफ में थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंट काम किया, अगर आप उनकी लाइफ स्टडी करेंगे, राइट, कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए, कोई भी वॉक ऑफ लाइफ से ले लीजिए, आप, आई एम श्योर आप एक चीज सब में कॉमन होगी, वो जो एक थ्रेड है जो सब लोगों को जोड़ता है, सब में कॉमन है, वो थ्रेड आई थिंक सो डिसिप्लिन का है। सो बहुत जरूरी है कि वो अनुशासन, वो डिसिप्लिन, एंड डिसिप्लिन का मतलब होता है मुझे जो करना है मैं वो करता हूँ या करती हूँ, इररिस्पेक्टिव मुझे वो करना उस वक्त अच्छा लगता है या नहीं लगता है। सो डिसिप्लिन इज नथिंग बट डूइंग व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, एंड वी डू इट एट दैट पॉइंट इन टाइम, इररिस्पेक्टिव वेदर वी फील लाइक डूइंग इट और नॉट। सो थर्ड पॉइंट जो मैंने आपके साथ शेयर किया इज बिलीव इन योरसेल्फ। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरे लाइफ में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मुझे इसको रैंकिंग देना होता है, आई थिंक सो मैं इसको नंबर 1 दूंगा, इज अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करिए। लाइफ में थैंक यू बोलना सीखिए, शुक्रगुजारी जिसको हम कहते हैं हिंदी में, बहुत जरूरी है। आपका शुक्रगुजारी का दिल होना चाहिए। हम लाइफ में, हर लाइफ में छोड़ दीजिए, एक पर्टिकुलर दिन छोड़ दीजिए, आज के दिन में हमने कितने लोग को थैंक यू बोला? क्या हम थैंक यू बोलते हैं? राइट? दिल से बोलते हैं?
राइट? वो बहुत जरूरी है. द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड, राइट? सो ग्रेटिट्यूड रखिए, ग्रेटफुल रहिए, राइट? मैं हमेशा कहता हूँ मेरे पास ऐसी कोई काबिलियत नहीं है, मैं बहुत ही सिंपल इंसान हूँ, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, मैं ना ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, ना मैं इंटेलिजेंट हूँ, ना मैं स्मार्ट हूँ, बट थैंक यू बोलना जानता हूँ. ग्रेटिट्यूड है कि ईश्वर की कृपा है, राइट? ईश्वर की कृपा के बिना मैं अपनी लाइफ नहीं जी सकता. इट्स जस्ट गॉड्स ग्रेस एंड हिज ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी. दैट इज हाउ आई लिव माय लाइफ, राइट? सो क्या आप ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आपको एक अच्छा परिवार दिया है, अच्छे माँ बाप दिए, एक अच्छी सहूलियत दी है. याद रखिए आपके पास आज जो है, हमारे पास जो है, वो दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों लोगों के लिए एक सपना है. तो क्या आप आर यू टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, राइट? बहुत जरूरी है कि आप एक ग्रेटिट्यूड वाला हाथ का मन रखिए. ये बेसिक चीज है, राइट? एंड कई बार लगता है कि बहुत ज्यादा बेसिक है, बट याद रखिए आप जब बड़े हो रहे थे, आपके माँ बाप ने, आपके एल्डर्स ने, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने कहा था कि बेटा हाथ धो के खाना खाया करो. बेसिक चीज है. आज वो हमारा कॉलर ट्यून बन गया है. जब आप खांसते हैं तो मुंह कवर करके करिए. हम सबको ये बचपन से सिखाया है, रोड पे थूकना नहीं चाहिए. हमने स्कूल में पढ़ा था एज प्राइमरी चिल्ड्रन वी शुड नॉट लिटर. आज क्या हो गया, हमने वो बेसिक चीज पे ध्यान नहीं रखी है, तो आज हमारा कॉलर ट्यून बन गया. और क्या कीमत दे रहे हैं, क्या कीमत दे रहे हैं ये बेसिक चीज सीखने के लिए. लेट अस हैव अ हार्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड, लेट अस लर्न टू से थैंक यू, राइट? एंड इस कॉल में जो यंगस्टर्स हैं, एंड यंगस्टर्स कोई एज से मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, बट जस्ट जनरली जो आप दिल से यंग हो, मैं उन सब से, एंड अदरवाइज जो आप एज से यंग है, आप सब से ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास जो है शुक्र मानिए, शुक्रगुजारी का दिल रखिए कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने आपके लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं, right? And for every child on the call, remember your father is one person who will work at 47 degrees in the sun so that you can sleep at 17 degrees in the comfort of your bedroom, right? याद रखिए, थैंक यू बोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है शुक्रगुजारी का दिल. नेक्स्ट पॉइंट, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आप अपने लाइफ में कमिटमेंट करिए कि मैं हर दिन बुक्स पढ़ूंगा. अगर मैं अपनी बात करूं, इस 2020 के साल में अगर आप देखें तो जनवरी के 31 डेज, फरवरी के 29 डेज, मार्च के 31 डेज, तो कितने हुए? 31 प्लस 29 कितने होते हैं? 70, राइट? एंड मार्च के 31 डेज तो हो गए कितने? 70 एंड 31, 102 दिन, राइट? एंड अप्रैल के आप 4 दिन लेंगे, मोटा मोटा 105, 106 दिन में मैंने तकरीबन 290 बुक्स पढ़ी है. एंड मेरा इस साल का टारगेट है कि मैं इस साल में 1000 बुक कंप्लीट करूंगा. तो मैं बुक सुनता हूँ एंड बुक्स पढ़ता हूँ, राइट? सो ये सुनने का काउंट मेरा 290 के आसपास है, एंड जितने पेजेस मैंने पढ़े हैं वो तकरीबन 3000 पेजेस हैं. क्या आपने इस साल में 3000 पेजेस पढ़े? अगर पढ़े हैं तो क्या पढ़ रहे हो? मैगजीन्स मत पढ़िए, बट बुक्स पढ़िए जिससे आपके आने वाला कल बेहतर हो, आप अपना बेस्ट वर्जन बन पाएंगे. क्योंकि जब आप सीखते हैं तो ये सीखते हैं कि मुझे सीखना चाहिए. आई विल रिपीट, मैंने जो कहा, व्हेन आई लर्न दैट आई नीड टू लर्न. बट अगर हम किताब ही नहीं पढ़ रहे तो हम सोचेंगे हमें सब कुछ आता है. मैं वो कुएं का मेंढक जैसा रहता हूँ. एंड मैं बहुत कम लोगों को देखता हूँ जो किताबों में इन्वेस्ट करते हैं. तो आप मोबाइल फोन जितने रुपए का आपने लिया है, क्या उतने रुपए की बुक्स आपके घर में है? याद रखिए, ऑर्डिनरी लोगों के घर में एक टेलीविजन होता है, अच्छा बड़ा सा टेलीविजन होता है, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के घर में लाइब्रेरी होती है. तो पढ़ाई करिए, बुक्स पढ़िए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो वो बुक्स आपको एक एक एडवांटेज देती है. बुक्स आपके बेस्ट फ्रेंड्स होने चाहिए, बिकॉज वो फ्रेंड आपके साथ पॉलिटिक्स नहीं खेलने वाला, वो आपको बैक स्टैब नहीं करने वाला. सो मेरी आपसे इस लिस्ट में नेक्स्ट पॉइंट जो है, अगर आप नोट लिख रहे तो कमिट करिए कि मैं हर दिन पढ़ूंगा, और हर दिन बीते हुए दिन से थोड़ा सा ज्यादा पढ़ूंगा. आप एक लाइन से तो शुरू करिए. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज जाके एक पूरी किताब पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं, बट एक लाइन पढ़ लीजिए, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो हम बुक्स पढ़े, अच्छी बुक्स पढ़े, राइट? याद रखिए कि आप को इन्फ्लुएंस करने में कोई चीज है तो टॉप ऑफ द ट्री में व्हाट वी रीड.
तो आप क्या पढ़ते हो, आपके वो कौन सी बुक्स हैं, मोबाइल फोन पे आप क्या पढ़ते हो, राइट? एंड केयरफुल रहिएगा, बिकॉज नेगेटिव चीज पढ़ेंगे तो वो आपके ऊपर इन्फ्लुएंस करता है, अगर आप अच्छी चीज पढ़ेंगे तो वो भी आपको इन्फ्लुएंस करता है। मेरे एक सेंटेंस याद रखिएगा कि फॉर्मल एजुकेशन विल हेल्प अस अर्न अ लिविंग, सेल्फ एजुकेशन विल हेल्प अस अर्न अ फॉर्च्यून। मैं रिपीट करता हूं मैंने जो कहा, फॉर्मल एजुकेशन जो हमें स्कूल में मिलती है, कॉलेज में मिलती है, यूनिवर्सिटी में मिलती है, फॉर्मल एजुकेशन विल हेल्प अस अर्न अ लिविंग, सेल्फ एजुकेशन विल हेल्प अस अर्न अ फॉर्च्यून, राइट? सो आप डिसाइड करिए आपको बेसिक लिविंग वाली चीज करनी है या आपको एक फॉर्च्यून कमाना है। आगे बढ़ते हैं, आगे लिस्ट में अगर आप जाएं तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हेल्दी खाइए। हमें वो खाना चाहिए जो फल खाने चाहिए, ऐसे फल खाने चाहिए जो ब्राइट कलर के हैं, हमें ऐसे वेजिटेबल्स खाने चाहिए जो ब्राइट कलर के हैं। अच्छी चीज खाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्ट फूड मत खाइए, जंक फूड आपने सुना होगा, जंक फूड। जंक फूड को हम जंक फूड क्यों कहते हैं? बिकॉज वो जंक है, एंड वो आपके पेट में बहुत सारी गड़बड़ करता है, राइट? सो अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, राइट? अगेन मैं जब ये कह रहा हूँ तो आपको के पेरेंट्स याद आ रहे होंगे, बिकॉज हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे एल्डर्स ने हमें ये बचपन से सिखाया, बट हमने कहीं ना कहीं वो जो बेसिक चीज है उसके ऊपर मैसिव सैक्रिफाइस किए। सो ईट हेल्दी, राइट? एंड जो अच्छा खाएंगे तो आप अंदर से अच्छा फील करेंगे, एंड जब आप अंदर से अच्छा फील करते हो तो आपका आउटसाइड बिहेवियर भी उतना ही अच्छा होता है। सो अच्छा खाइए, it becomes very very important for us to realize that. Next point अगर मैं आपसे कहूं कि एक्सरसाइज करिए, राइट? क्या आज सुबह आपने एक्सरसाइज करी, आपने पुशअप्स करे, आपने स्किपिंग करी, आपने रनिंग करी, क्या फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं? सो अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो आप अपने आप से पूछिए, क्या मैं फिजिकली फिट हूं, क्या मैं इमोशनली फिट हूं, क्या मैं स्पिरिचुअली फिट हूं, क्या मैं इंटेलेक्चुअली फिट हूं, क्या मैं फाइनेंशियली फिट हूं, क्या मैं एकेडमिकली फिट हूं अगर आप स्टूडेंट हैं तो। सो एक्सरसाइज सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, आप एक्सरसाइज करिए और आप फिट रहिए, जो आपको मैंने डिफरेंट डायमेंशन बताई है। अगर आप लिख रहे हैं तो और रह गया तो वापस सुन लीजिए। अगर आप एक्सरसाइज करिए, फिटनेस बिल्ड करिए अपने स्पिरिचुअल लाइफ की, फिटनेस बिल्ड करिए अपनी फिजिकल लाइफ की। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रोफेशनल लाइफ की, फिटनेस बिल्ड करिए अपने इंटेलेक्चुअल लाइफ की। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एकेडमिक लाइफ की। आप अपने फिटनेस बिल्ड करिए कि आप सोसाइटी के लिए क्या करते हैं, राइट? कि आपका योगदान सोसाइटी के लिए क्या है, योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू योर कम्युनिटी, क्या उसके लिए क्या फिट है? एंड वेरी इंपॉर्टेंटली क्या आप इमोशनली फिट है, राइट? किसी ने कुछ कह दिया तो आप एक अलग ही इमोशनल रोलर कोस्टर पे चल जाते हैं, राइट? सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर 1 मिनट, आनंद सर किसी ने म्यूट कर दिया है आपको, प्लीज अनम्यूट, रिवाइंड। अभी ठीक है? अच्छा, मेरी बातें इतनी बोरिंग होती है कि कोई इंसान बेचारा बोर हो गया, राइट? क्षमा चाहता हूँ, मेरी बातें बोरिंग ही होती है, मेरी बातें किसी को ज्यादा अच्छी नहीं लगती, इसलिए मेरे लाइफ में ज्यादा दोस्त नहीं है। बट एनीवेज, तो मुझे ज्यादा ग्लैमरस चीजें पसंद नहीं, मैं बड़ा सिंपल सा इंसान हूँ एंड बेसिक्स पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करता हूँ, राइट? तो अगर मेरी बातें बोरियत लग रही है तो क्षमा चाहता हूँ, बट कोई बात नहीं, राइट? सो मैंने कहा था एक्सरसाइज, आई डोंट नो मेरा कितना पॉइंट आपने मिस किया, राइट? सो नेक्स्ट जो हम लिस्ट में कवर कर रहे थे, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा था कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें अपने फिटनेस पे ध्यान रखना चाहिए। और कौन कौन से पहलू तो हमने देखे, हमारी स्पिरिचुअल फिटनेस, हमारी फिजिकल फिटनेस, हमारा प्रोफेशनल फिटनेस, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, आपका इंटेलेक्चुअल फिटनेस, यार आपका एकेडमिक या एजुकेशनल फिटनेस, आपका इमोशनल फिटनेस, आपका फाइनेंशियल फिटनेस। एक्सरसाइज करिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम दिन में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुबह ही करिए, कोई भी पहर में
आप एक स्लॉट लगाइए एंड उस स्लॉट में डिसिप्लिन रहिए कि आप हर दिन ये करेंगे, राइट। एंड चैलेंज है हर दिन करना। जैसे मैंने कुछ समय पहले कहा, आपको डिसिप्लिन की परिभाषा बताई। डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट आई नीड टू डू एंड आई डू इट irrespective whether I feel like doing it or I don't feel like doing it. जब हमें करना अच्छा लगता है हम करते हैं तो उसमें चैलेंज नहीं है, बट जब हमें करना नहीं अच्छा लगता है, राइट, उस टाइम ये थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। कई बार हम ना केवल फिजिकली लेजी हो जाते हैं, बट आप में से कुछ लोग एंड दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेंटली लेजी हैं। And mental laziness will not help you become the best version of yourself. In fact, it will degrade you to be the second best version of yourself, right? So क्या आप mentally lazy हैं? क्या आपको अपने आप को पुश करना पड़ता है कि चल कुछ किताबें पढ़ते हैं? क्या पुश करना पड़ता है कि चलो अपनी वोकैबुलरी बिल्ड करें? क्या पुश करना पड़ता है कि मैं हर दिन एक ऐसे लिखूं? क्या पुश करना पड़ता है कि मैं अपनी डोमेन नॉलेज इंप्रूव करूं? जिस भी क्षेत्र में आप काम करते हैं या करना चाहते हैं, कि आप अपने फिटनेस उस पर बना रहे हैं, राइट। सो अपने आप से पूछिएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट, लेट अस कंसिडर दिस वेरी सीरियसली कि हम दूसरों के बारे में कम सोचें एंड दूसरों के बारे में कम चिंता करें कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगी। जैसे आप सब जानते हैं दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। सो मेरा इन दैट सीक्वेंस नेक्स्ट पॉइंट इज वरी लेस अबाउट अदर्स। यस, आप चिंता करिए कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचेंगे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचेंगे, ऊपर जो ईश्वर बैठा हुआ है वो आपके बारे में क्या सोचेगा, उसके ऊपर गौर करिए। ये ना कह के लोग क्या सोचेंगे, राइट। तो लोगों का काम है सोचना, आप कुछ करें या नहीं करें वो सोचेंगे, बिकॉज उनके पास और कुछ काम है नहीं, राइट। सो ये मत सोचिए कि दूसरे क्या सोच रहे हैं। आपको जो आपके परिवार में वैल्यू सिस्टम जो आपको सिखाई गई है, जो वैल्यू जिसके ऊपर आपकी फैमिली बिल्ड हुई है, उस वैल्यू पे कभी कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा, राइट। एंड याद रखिए कि अलग रहना, दुनिया में लोगों से अलग रह के जीना बहुत डिफिकल्ट है। इट इज डिफिकल्ट टू बी डिफरेंट, राइट। एंड एक आपको अमेजिंग चीज सिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप पवित्रता ही समझते हैं, होलीनेस समझते हैं, तो होलीनेस का ऑपोजिट अनहोली नहीं होता है। पवित्र का ऑपोजिट अपवित्रता ही नहीं होती है। होलीनेस का ऑपोजिट क्या होता है? होलीनेस का ऑपोजिट होता है कॉमन। आप दुनिया जैसे बन गए, यू कन्फॉर्म्ड टू द वेज ऑफ द वर्ल्ड, यू नीड टू बी डिफरेंट। क्या आप एक अलग लाइफ जीते हैं? क्या आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके नेबर्स, आपके सोसाइटी में लोग कहेंगे कि हाँ ये इंसान अलग है, दूसरों जैसा नहीं है, इसमें कुछ अलग बात है। आप में अलग बात क्या है, राइट? क्या आप आई डोंट नो, इसको मैं हिंदी में कह सकता हूं, समझने की कोशिश करिएगा। दो सवाल है। सवाल नंबर 1, आर वी गोइंग विद द फ्लो? सेकंड, आर वी गोइंग इन अ फ्लो? सो आर यू इन अ फ्लो और आर यू गोइंग विद द फ्लो? सो मेरा आपसे सजेशन है that we should be in a flow. I should not be going with the flow, because with the flow एक मरी हुई मछली जाती है। याद रखिएगा, एक जिंदा मछली अपने करंट के अगेंस्ट में जाती है। एक हवाई जहाज करंट के अगेंस्ट में, विंड के अगेंस्ट में उड़ता है। पतंग विंड के अगेंस्ट में उड़ती है। तो क्या आप अलग हैं? एंड अलग बनने की आप में क्या हिम्मत है? याद रखिएगा कि आप बोलेंगे यस मुझे अलग बनना है, मुझे लोगों जैसा नहीं बनना है, लोगों जैसी सोच नहीं रखनी है। याद रखना, ये सोचना बहुत जरूरी है, अच्छी बात है, बट जैसे मैंने कुछ समय पहले बताया, ना केवल सोचिए बट उसके ऊपर काम करिए। यू आर नॉट ओनली हैव टू थिंक बट यू हैव टू एक्ट ऑन इट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दूसरे क्या सोचते हैं उसके ऊपर ज्यादा अपनी मेंटल एनर्जी मत स्पेंड करिए, राइट। सो डोंट वरी अबाउट अदर्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो हम अगर आप नोट्स लिख रहे हैं, वो नोट्स में आप लिखिए कि वी नीड टू वर्क हार्ड। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नथिंग इन दिस वर्ल्ड कम्स इजी। याद रखिएगा, सक्सेस कम्स बिफोर वर्क ओनली इन द डिक्शनरी, एंड प्रिपरेशन कम्स बिफोर सक्सेस इवन इन द डिक्शनरी। सो क्या आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं? एंड डोंट कंफ्यूज हार्ड वर्क विद द नंबर ऑफ आवर्स यू आर वर्किंग। अगर आप ऑफिस में हैं तो डोंट कंफ्यूज कि मैं 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे की नौकरी करता हूं, कि मैंने 10-12 घंटे की पढ़ाई करता हूं। हार्ड वर्क हैज गॉट नथिंग टू डू विद द नंबर ऑफ आवर्स।
Don't confuse activities with accomplishments. Don't confuse. अगर सादी भाषा में बोलूं तो आपके जिम में जो ट्रेडमिल होती है, ट्रेडमिल का जो रबर होता है वो बहुत मूवमेंट करता है बट प्रोग्रेस नहीं है. सो प्लीज अंडरस्टैंड, मोशन एंड प्रोग्रेस में फर्क है. हमें प्रोग्रेस करना है. एक्टिविटीज को हमें ये नहीं सोचना है कि एक्टिविटीज कर ली तो रिजल्ट आएगी. नो, वी नीड टू वर्क हार्ड एंड वी नीड टू वर्क हार्ड टुवर्ड्स अ गोल. मेरे पास एक दिशा होनी चाहिए, मेरे पास एक डायरेक्शन होना चाहिए, मेरे पास एक जोश, उमंग, जज्बा होना चाहिए. यू हैव टू वर्क हार्ड, राइट. एंड आज बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं कि आनंद हम स्मार्ट वर्क करते हैं, राइट. सो बहुत जरूरी है, स्मार्ट वर्क करिए, बट स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क भी करिए. खाली स्मार्ट वर्क से काम नहीं चलने वाला, राइट. सो ये अपने दिमाग में लेके चलिए कि इफ यू वांट टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, आई नीड टू वर्क हार्ड एंड आई नीड टू वर्क स्मार्ट. सो दोनों का कॉम्बिनेशन है. सो यू हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड. एंड द नेक्स्ट थिंग इज लेट अस ट्राई न्यू थिंग्स. कुछ नया करिए. So, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, when was the last time you did something for the first time? सोचिए, when was the last time you did something for the first time? क्या पिछले आपने एक हफ्ते में कुछ नया किया? एंड जो आज से हफ्ता, कल से, मंडे से जो हफ्ता नया स्टार्ट होने वाला है, क्या मेरे पास उसका एक टू डू लिस्ट है? क्या मेरे पास आने वाले हफ्ते का नॉट टू डू लिस्ट है? क्या आने वाले हफ्ते के लिए क्या मेरे पास माइट टू डू लिस्ट है? मैं बेट लगा सकता हूं कि अगर हम यहाँ पर 90 जितने लोग हैं इस कॉल में, उसमें से 90% लोग के पास ऐसा कुछ नहीं है. उनका सुबह होता है, उनकी दोपहर होती है, उनकी शाम होती है, रात होती है और दिन खत्म. तो एक ही टाइप का जीवन साल दर साल में जीते हो, मेरी परिभाषा में उसको लाइफ नहीं कहते. हमें नया करना है, नई टेक्नोलॉजी पे काम करना है, नई सोच पे काम करना है. बट नई सोच पे आप कब काम करेंगे? जब आप अपना एसोसिएशन बदलेंगे. मेरे फेवरेट सेंटेंस है, मैं काफी बार बोलता हूँ, आप में से कुछ लोगों ने मुझे ये पहले कहते हुए सुना होगा कि ईगल्स डोंट फ्लाई विद पिजन्स. डिफिकल्ट है, बट याद रखिए, ईगल एक ऐसा बर्ड है जो फ्लटर नहीं करता है, इट सोर्स. एंड हमें लाइफ में ईगल बनना है, राइट. मेरी कोशिश है कि मुझे लाइफ में ईगल बनना है. आई वांट टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर वर्ल्ड बिकॉज आई लिव्ड हियर. I want to make my company where I work a better place because I served there. आप नया क्या कर रहे हैं? नया करेंगे, फेलियर मिलेगा, कोई बात नहीं. बट फेल कौन होता है? वही होता है जो कोशिश करता है. सो मेरे कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा. फेल की स्पेलिंग क्या होती है? FAIL. उसे डरिए मत, बिकॉज मेरे लिए वो होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग. Right? And we all have to do three things. We have to fail fast, we have to fail early, and we have to fail forward. I'll repeat what I said. हमें तीन चीजें करनी है. We have to fail fast, we have to fail early, and we have to fail forward. And याद रखिए, successful people are those people who have failed more than what average people even attempt doing it. बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको समझिए, राइट. सो क्या आप फेल हो रहे हैं? क्या आप निराशा अनुभव रहे हैं? राइट. एंड याद रखिएगा, समटाइम्स वी विल विन एंड समटाइम्स वी विल नो. सोच बदलिए. समटाइम्स वी विल विन एंड समटाइम्स वी विल लर्न. आप में से बहुत सारे लोग ने ये सोचा होगा कि समटाइम्स वी विन एंड समटाइम्स वी लूज. No, we don't lose, we learn. You lose only when we fail to learn the lesson. गलती एक बार होती है, दोबारा वही गलती करते हैं तो उसको गुनाह कहते हैं. तो हमें गलती रिपीट नहीं करनी, बट हमें गलती करनी है, राइट. हर दिन गलती करिए, हर दिन नई गलती करिए. दैट इज द वे हमें
इसके ऊपर फोकस करना है. सो ट्राई टू डू न्यू थिंग, राइट. सो समरी अगर मैं आपको दे सकूं, जो अगर आप नोट्स लिख रहे हैं, चेक करिए आपने ये 10 पॉइंट कवर करे या तो नहीं किए. पॉइंट नंबर 1 हमने क्या देखा था? पॉइंट नंबर 1 हमने शुरुआत करी थी, हाउ डू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स. उसमें हमने 10 चीजें देखी थी. पॉइंट नंबर 1 था सेलिब्रेट स्मॉल विंस. पॉइंट नंबर 2 था let us think positively and let us act positively. पॉइंट नंबर 3 था believe in yourself. अपनी काबिलियत पे आपको भरोसा होना चाहिए, बिकॉज अगर मैं अपनी काबिलियत पे भरोसा नहीं रखता हूं तो दूसरा कोई रखने वाला नहीं है. चौथा पॉइंट हमने देखा था कि एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी का दिल की मैंने बात आपसे करी. पांचवा पॉइंट हमने देखा था कमिट टू रीडिंग एंड रीडिंग मोर ऑन अ डेली बेसिस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं एक आपको सलाह दे सकूं, बाकी सब भूल जाइए, एक सलाह अगर मैं आपको दे सकूं इज आज से किताबें पढ़ना शुरू करें, राइट. एंड अच्छी किताबें पढ़ें, वो किताबें पढ़ें जो आपको आने वाले कल में हेल्प करने वाली है. और ये जब पैंडेमिक खत्म होगा, और मैं ये मानता हूं कि जल्दी खत्म होने वाला है, तो नई दुनिया में जो हम एंटर करेंगे वो दुनिया आज की दुनिया से अलग होगी. आने वाली दुनिया में आपको स्किल्स चाहिए होंगे. तो याद रखिएगा, स्किल्स पे बिल्स, याद रखिएगा. वो आने वाले जो समय है जब हम न्यू नॉर्मल, राइट, आज का जो हमारा नॉर्मल है वो अब कभी लौटने नहीं वाला है. सो जब हम ये सब खत्म हो जाएगा, एक नॉर्मल लाइफ हम जिएंगे, याद रखिएगा वो एक न्यू नॉर्मल होगा, एक नया नॉर्मल होगा. एंड उस नए नॉर्मल में हमें अगर लाइफ में शाइन करना है तो अपनी कुछ स्किल्स डेवलप करिए, अपनी सेलिंग स्किल्स डेवलप करिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करिए, अपना निगोशिएशन स्किल्स डेवलप. किसी ने मुझे वापस म्यूट कर दिया था. मेरी बातें लोगों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, राइट. अच्छा लगता है जब लोग बोर होते हैं, बिकॉज याद रखिएगा प्रैक्टिस बोरियत वाली चीज होती है, राइट. वी हैव टू वर्क हार्ड व्हेन नो वन इज वाचिंग, राइट. एक बहुत अच्छा कोट है मेरे लाइफ में, मैं कई बार अपने आप से कहता रहता हूँ, when you sweat in practice you will bleed less in war. I'll repeat, right. जो लोग मुझे बार बार म्यूट कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट ये आपके लिए शायद काम में आएगा कि when we sweat in practice we will bleed less in war. बाहर जाके युद्ध अगर आप लड़ेंगे और तैयारी होगी तो खून कम बहेगा वहां जाके, राइट. कोई बात नहीं, राइट. सो हमने जो पॉइंट देखा था, कमिट योरसेल्फ टू रीडिंग, that was the point that I was on. and हर दिन हमें अपनी रीडिंग को इंक्रीज करना है. नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था कि ईट हेल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. आपका नॉट ओनली योर फूड बट योर मेंटल फूड ऑल्सो. मेंटल फूड पे ध्यान रखिए, आप क्या क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, राइट. ऑल दैट चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप. एक खाली दिमाग शैतान का घर होता है. तो जब आपके पास ऐसे समय में बहुत सारा समय है, राइट, मैं आशा और प्रार्थना करता हूँ कि आप अच्छी चीजें देख रहे हैं. याद रखिएगा, ऐसा कुछ मत करिएगा जो आप अपनी माँ के साथ शेयर नहीं कर सकते, राइट. सो ईट हेल्दी, थिंक हेल्दी, एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं ये कहता हूँ कई बार कि हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट जो जगह है वो 2 कान के बीच में 6 इंच की जगह है. इसको अच्छा खुराक दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो फ्यूल है मेरे और आपके जीवन के लिए. नेक्स्ट पॉइंट अगर आप लिख रहे हैं तो पॉइंट नंबर 7वां था कि हम एक्सरसाइज करें एंड हम अपनी फिटनेस बिल्ड करें. स्पिरिचुअल फिटनेस की मैंने बात करी, फिजिकल या प्रोफेशनल फिटनेस, इंटेलेक्चुअल या एकेडमिक या एजुकेशनल फिटनेस की मैंने बात करी, कंट्रीब्यूशन टू द कम्युनिटी या सोसाइटी की मैंने बात करी, मैंने इमोशनल फिटनेस की बात करी, मैंने फाइनेंशियल फिटनेस की बात करी. एंड नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 ये था कि हम दूसरों के बारे में कम टेंशन करें, चिंता कम करें कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं. चिंता ये करिए कि आपके माँ बाप आपके बारे में क्या सोचते हैं, राइट. आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं. अबव ऑल ईश्वर जो आपका क्रिएटर है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, राइट. वो ज्यादा जरूरी है. नेक्स्ट पॉइंट था पॉइंट नंबर 9 कि हमें हार्ड वर्क करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. हार्ड वर्क से आप भागिए मत, राइट. बिना पसीना बहा कुछ नहीं होता है. यू हैव टू वर्क हार्ड, राइट. लाइफ डिफिकल्ट है एंड उस डिफिकल्ट लाइफ में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें अनुशासन वाली लाइफ, हार्ड वर्क वाली लाइफ, एंड हार्ड वर्क एक डायरेक्शन के साथ, एक दिशा के साथ
बहुत जरूरी है भाई। वैसे तो रोड पे काम करने वाले जो हमारे मजदूर साहब हैं वो हमसे और आपसे ज्यादा काम करते हैं, बट उनकी लाइफ कहीं जाती नहीं है, बिकॉज उनकी लाइफ में कोई दिशा नहीं है, वो एक ही काम बार बार कर रहे हैं, राइट। एंड वो मेरा नेक्स्ट पॉइंट था कि हमें लाइफ में रेगुलरली कुछ ना कुछ नया करना चाहिए, राइट। सो ये 10 पॉइंट्स थे जो मैं समझता हूँ कि अगर इस 10 पॉइंट के ऊपर हम फोकस करें तो वी विल ऑल बी बेटर वर्जन्स ऑफ आवर सेल्स। एंड मैंने आपसे कुछ समय पहले कहा कि हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि आई विल बी माई बेस्ट, आई विल बी माई बेस्ट। मेरी ये कोशिश नहीं होनी चाहिए कि आई विल बी द बेस्ट। अगर आप एक क्लासरूम में हैं तो उस क्लास में बेस्ट बनने की कोशिश मत करिए। मेरी आपसे सलाह है कि आप अपना बेस्ट वर्जन बन के रहिए। आप जितना कर सकते हो आप उतना करिए, और इसका ये मतलब नहीं कि कंफर्ट जोन में आ जाइए, इसको आप गलत सेंस में मत लीजिएगा, राइट। कि आनंद बोल रहा था कि भाई जितना कर सकते, मैं जितना कर सकता तो आई ट्राइड माई बेस्ट, बट हाउ डू आई डिफाइन दैट बेस्ट, हाउ डू आई मेजर दैट बेस्ट। एंड कोई चीज को अगर आप मेजर नहीं कर सकते तो आप उसको मैनेज नहीं कर सकते, राइट। सो हमें हर दिन इसके ऊपर काम करना है, हर दिन इसके ऊपर मेहनत करनी है, दिशा के साथ काम करना है, एंड अपने आप को कॉन्स्टेंटली चैलेंज करना है, कॉन्स्टेंटली चैलेंज करना है, राइट। एंड वी हैव टू बी इन अ फ्लो, नॉट गो विद द फ्लो, राइट। ये मैंने कुछ बातें आपके साथ शेयर करी, राइट। सो आपके समय में मैंने आपसे 10 चीजें करी, शेयर करी, एंड आई होप ये सिर्फ 10 चीजें नहीं है, इसमें आप और ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में कहा, दिस आर नॉट, दिस इज नॉट एन ऑल inclusive list. These are just some of my thoughts. There could be many more points. I would encourage you to add to that list, right? And on a daily basis, ask yourself when you hit bed, was I the best version of myself in the day? Did I do all that I could have done? Right. And when I look back into the past, do I have a feeling that yes, काश मैंने इसको ज्यादा सीरियसली लिया, काश मैंने वो समय वेस्ट नहीं किया होता, काश मैं डिसिप्लिन रहता, राइट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो लेट अस बी द बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्स। एंड मेरा जो फेवरेट टैगलाइन है, जो आप कुछ लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मैं 4 वर्ड्स के ऊपर अपनी लाइफ को डिजाइन करने की कोशिश करता हूँ कि स्टार्ट अननोन, फिनिश अनफॉरगेटेबल। हम लोग सब जब शुरुआत करते हैं कि हमें कोई जानता नहीं है तो हम स्टार्ट अननोन तो बाय डिफॉल्ट करते हैं, बट दूसरे जो 2 शब्द हैं विच इज फिनिश अनफॉरगेटेबल, राइट। सो मेरी आपसे चैलेंज है कि आप आज से इस लम्हे से, इस पल से एक ऐसा डिसीजन लीजिए कि मैं ऐसा कुछ करूंगा कि लोग याद रखेंगे, राइट। एंड आई वुड वांट टू मेक दिस वर्ल्ड a better world because I lived here. I would want to make my society a better society because I lived here. I would want to make my school, my college, my university, my office, जो भी आप कर रहे हैं, a better place because आपने वहाँ पर अपना योगदान दिया है, right? So ये कुछ मेरे points थे. I hope it was useful to you. इसके ऊपर आप notes लिखिएगा, right? अगर आप मेरे से संपर्क में रहना चाहते हैं तो आप मेरा मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं। मुझे फोन मत करिएगा, आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको सामने से रिप्लाई करूंगा, राइट। आप अपना नाम और रेफरेंस दीजिएगा आज के कॉल का, राइट। एंड जैसे मुझे वक्त मिलेगा मैं डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। मेरा फोन नंबर अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, 8454943627। मैं रिपीट करता हूँ, 8454943627। एंड मेरा ईमेल आईडी है ab.anandbhatnagar@gmail.com। A alphabet A, B alphabet B dot Anand spelled as ANAND, Bhatnagar spelled as BHAPNAGAR @gmail.com। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो आप मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो मुझे हेल्प करता है। मुझे तो टेक्नोलॉजी ज़्यादा समझ में नहीं आती है, बट वो ही सो स्वीट, ही ऑलवेज हेल्प्स मी। तो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है alwaysbelieving_ab, राइट। आप इसको या AB टॉक्स करके देखेंगे तो भी शायद आपको मिल जाएगा, राइट। सो मैं कुछ ना कुछ थॉट्स अपने शेयर करता रहता हूँ, एंड उसके ऊपर देखिएगा
आप उसको फॉलो करिएगा, अपने फ्रेंड्स को कहिएगा फॉलो करें, राइट। एंड मैं जो कर सकता हूँ वो करने की कोशिश करता हूँ, राइट, ताकि हम मिलके एक बेहतर कल बनाए, एक बेहतर युग बनाए, इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाए, जिसमें प्यार हो, मोहब्बत हो, जिसमें कंपैशन हो, राइट। जो आज कहीं ना कहीं मिसिंग है। आज सबके लिए पैसा बहुत कुछ है, बट आज रियलाइज कर रहे हैं लोग क्या पैसा नहीं खा सकते। एंड ये सेंटेंस मैं काफी सालों से बोल रहा था कि एक दिन आएगा जब लोग रियलाइज करेंगे क्या पैसा नहीं खा सकते, राइट। सो पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी बड़ा रिलेशनशिप्स होता है, उससे भी बड़ा ट्रस्ट होता है, राइट। सो आई होप एंड प्रे दैट एज you live your life, you live life on fundamentals, and ये सब 10 चीजें एंड आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। ये सब चीज कौन से फाउंडेशन पे बनती है, कौन से बेडरॉक पे बनती है, इसका नीड मेरे लिए कैरेक्टर है, इसका नीड, इसका फाउंडेशन मेरे लिए चरित्र है, राइट। सो याद रखिएगा, आपका कैरेक्टर पे दाग नहीं होना चाहिए, चरित्र के ऊपर कभी दाग नहीं होना चाहिए। मेरा कैरेक्टर ब्लेमिशलेस होना चाहिए, मेरा कैरेक्टर में कोई दाग नहीं होना चाहिए, राइट। सो वो इम्पेकेबल होना चाहिए। सो योर कैरेक्टर शुड बी इम्पेकेबल। सो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने चरित्र पर काम करिए। चरित्र के ऊपर आज ना कोई टेलीविजन पे सीरियल्स आती हैं, ना कोई एपिसोड्स आते हैं, ना कोई न्यूज आती है, ना कोई मैगजीन्स पे इसकी चर्चा होती है, ना कोई इसके ऊपर चर्चा करता है। और मेरे जैसे लोग चर्चा करते हैं तो लोग म्यूट भी कर देते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है, कोई बात नहीं, राइट। बट चरित्र के ऊपर फोकस करिएगा, बिकॉज अल्टीमेटली दैट इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स। आपके पास कितनी दौलत है वो ज्यादा मायने नहीं रखती है, बट मैं अपनी लाइफ ऐसे जीता हूँ कि मेरे ये दामन के ऊपर कभी दाग आया नहीं है, एंड ना कभी आने दूंगा, राइट। सो आई होप यू विल लिव अ लाइफ ऑफ कैरेक्टर। उस कैरेक्टर के बेस के ऊपर, उस कैरेक्टर के फाउंडेशन के ऊपर आप ये 10 चीजें बनाएंगे तो लाइफ बहुत सुंदर होगी, एंड आपकी लाइफ से किसी और को प्रेरणा मिलेगी, राइट। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। Anand sir, you have to take questions. Anand sir, you have to take questions. Okay, so thank you, sir. Thank you for reminding me. So, any questions? So AB, one question someone has asked on chat box is, when he starts reading a book, when he starts reading a book, he's not able to complete the whole book. In between, he gets Lost. That is his fine. That is interest fine. goes away. So, मेरा एक सिंपल सा सेंटेंस याद रखिएगा, इट इज बेटर नॉट टू फिनिश देन नॉट टू स्टार्ट, राइट। सो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप स्टार्ट करो और बीच में छोड़ दो, बट एटलीस्ट आप स्टार्ट तो कर रहे हैं। कितने लोग स्टार्ट भी करते हैं, राइट। सो आपने एक अच्छी शुरुआत करी, वेरी गुड, राइट। सो अपने आप को, जैसे मेरा फर्स्ट पॉइंट था, तो अपने आप को थोड़ा सा पैट इन द बैक करिए, सेलिब्रेट स्मॉल विंस। रिमेंबर द फर्स्ट पॉइंट वाज सेलिब्रेट स्मॉल विंस। अगर आपने दो पन्ने पढ़े, वेरी गुड। दुनिया में कितने लोग 2 पन्ने पढ़ते हैं? आज का दिन अभी थोड़े घंटों में खत्म होगा इंडिया में, दूसरे देशों में शायद सूरज उगने वाला है। तो आप सोचिए, आज भारत की वस्ती में से कितने लोग ने 2 पन्ने पढ़े होंगे, डिस्कशन किया होगा कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नेगेटिव 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 एंड नेगेटिव एंड गॉसिपिंग 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 के अलावा दुनिया करती क्या है? बट आप उनमें से हट के पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, तो फैंटास्टिक, वेरी गुड, राइट। सो वो हैबिट बनने में टाइम लगता है, एंड जैसे जैसे आप अपने आप को थोड़ा सा पैट इन द बैक करते रहेंगे, थोड़ा सा मोटिवेट करते रहेंगे, याद रखिए, व्हेन देयर इज नो सनशाइन यू हैव टू मेक योर ओन सनशाइन। I'll repeat what I said. When there is no sunshine, you create your own sunshine, right? So जब वो external motivation नहीं मिलता, तो आप अपने आप को मोटिवेट करिए, तो उसमें निराश मत होगी, राइट। स्टार्ट किया है, फैंटास्टिक। 2 पन्ने पढ़े हैं तो कल 2.5 पन्ने पढ़े, राइट। 2.5 के 3.25 होंगे, 3.25 के 3 होंगे, वो धीरे धीरे बिल्ड करें, टेक बेबी स्टेप्स। रिमेंबर, रोम वाज नॉट बिल्ड इन, I hope I'm answering your question. Another question is, if we are uncertain about our career, then how to gain confidence for that? तो जब सवाल नहीं होते, 2 चीज होती है, या तो सब कुछ समझ में है तो कुछ समझ में, एंड दोनों डिफिकल्ट होते हैं,
And for a change, मैं in time हूँ. जो लोग मेरा पहली बार सेशन अटेंड करने में इस चीज के लिए बदनाम हूँ कि मेरा कभी भी सेशन टाइम पे खत्म नहीं होता है. कोशिश कर रहा हूँ सुधरने की, राइट. एंड आज एक आई थिंक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया कि मैंने 2 मिनट 2.5 मिनट इनफैक्ट पहले ही उसको पूरा किया, राइट. एंड इन केस आपके पास कोई और क्वेश्चन नहीं है एंड बाद में अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, आप मुझे मैसेज करिएगा, आप मुझे ईमेल करिएगा एंड थोड़ा सा वक्त दीजिएगा. मैं आपको डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा. मेरा आंसर इसका मतलब नहीं है कोई पत्थर की लकीर है. मेरी जो भी थोड़ी बहुत समझ है, जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज है, उससे मुझे जो थोड़ा बहुत समझ में आता है उसके साथ उसके बेसिस पे मैंने आपके प्रश्न को आंसर करने की कोशिश करी होगी, राइट. कई बार काम करेगा, कई बार काम नहीं करेगा, दैट इज ऑल राइट, राइट. सो आप डोंट हेजिटेट टू रीच आउट, टेक्स्ट मी, मैसेज मी, कॉल मी. कॉल कम ही करिएगा बट आप मैसेज करना, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड. Alright, so if you don't have any questions, Patel sir, thank you for this opportunity. Thank you for inviting me. It's always a pleasure and privilege to be able to connect with you and through you to the shapers of tomorrow. The youth, I believe, is going to shape our tomorrow, not just for the country but for the world. Right. So thank you for this opportunity. Thank you, Chinmay, for setting it up. Right. And ये रिकॉर्ड हुआ, इसको आप कोई चैनल पे पोस्ट करेंगे ताकि किसी को इसको रेफर करना हो तो दे can refer it. Right. So thank you once again. Thank you one and all. Thank you for your patient listening. Look forward to connecting with you sometime in the future. Till such time, take good care of yourself. And in times such as these, let us pray and not panic. Let us show faith and let us not have an emotion of fear. Let us worship and not worry. Let us be warriors, not warriors. And live a life on 2 words: hope and let us do the sahi thing. So hope की अगर आप स्पेलिंग देखें तो HOPE होता है. होप का मतलब होता है होल्ड ऑन, पेन एंड्स. पकड़ के रखिए, दर्द खत्म होने वाला है. सो होल्ड ऑन, पेन एंड्स एंड सही चीज करिए. सही की स्पेलिंग होती है SAHI. स्टे एट होम इंडिया. सही करेंगे तो हमारे लिए होप होगा, राइट. आने वाला कल हमारे लिए एक बेहतरीन कल होगा, सुंदर वाला कल होगा. उसके लिए हमें सही करना है एंड होप होगा, राइट. सो स्टे एट होम इंडिया. Hold on, pain ends, right? And keep smiling, keep shining, and look forward to meeting in person. I don't know when, but hopefully God will provide an opportunity when we meet in person once again. Till such time, take good care of yourself. God bless you, and do your best and be the best version of yourself. Let us have these 4 sentences or these 4 words as a tagline: start unknown, finish unforgettable. So that's Anand, that's AB signing off. Once again, thank you for your time. Thank you for your patient listening. Thank you for everything that we have done, and look forward to meeting you sometime in the future. God bless you. Thank you. Thank you very much. Till the last sentence, you were very inspiring. Thank you very much. We look forward to have more and more sessions. I don't know. What do I log off? Do I stay on? What do I? No, since very basic question. So no, you can on your screen you have an option wherein you can see a red but phone like a situation where you can. Okay, so I'm signing off. Yes. And you have my number. In case there is something, you can always reach out. So thank you. God bless you. Thank you very much.